So in previous class, we have discussed about the economical analysis. Okay. For example, if you have some present amount, and for example, if you invest it for n periods at earning rate of I, so its future value will be this one. Okay. Similarly, if in future you have this much amount after n years and the earning rate is I, so its present value will be this one. Okay, so these are the basic equation of the economics. Also, we have discussed the uh, NVT and present value and future value. See, for example, if each and every year some fixed amount is uh, coming for n periods at earning rate of I, so its present value will be this one. Okay, and similarly, if you have some present amount P for n periods at earning rate of I, so its NVT, yeah, its annual rate will be equal to this one. Okay, तो जनरली ये हमारे पास इक्वेशंस होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू को आप एनवीटी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. आई जो है दैट इज द अर्निंग रेट, एन जो है दैट इज द number of periods, okay, and P is the present amount. Similarly, how the NVT will be converted into present amount. So also we can take this factor from table, or you can calculate it through this equation. Okay. Similarly, then we have the NVT with respect to the future amount. Okay. Let's suppose for each and every year some constant amount is coming for n period at earning rate of I, so its future value will be this one. Okay. Similarly, if some future amount is given for n period at I earning rate, so its NVT will be equal to this one. Okay, again you can calculate either by this equation, or you can take this factor from table and multiply it with NVT, and you will get the future amount, and also the NVT from future amount. So these are we have discussed these 6 basic equations. Again, converting the present amount into future, or the future amount into present. Also converting the present amount into NVT, or converting the NVT into present amount, and converting the future amount into NVT, or converting the NVT into future amount. Okay, these are the 6 equation, basic equation of economics which we have discussed. Okay, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. Then we have discussed the comparing of the alternatives. Suppose if you have 2 projects, so based on economics, which one will be selected? Okay, अगर 2 project हैं, तो based on economy, how you will decide कि कौन सा project जो है वो economical है. ठीक है, या अगर एक project है उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो आपने स्टार्ट में डिसाइड करना होगा ना कि इस इन्वेस्टमेंट पे आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसका एनुअल खर्चा कितना होगा, एनुअली आपको इनकम कितना आएगा, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको कितना मिलेगा. तो आपने कंपैरिजन करना होगा ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इकोनॉमिकल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. ये सिंगल प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं ना कि प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. और अगर प्रोजेक्ट 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है. तो फॉर दैट पर्पसेस वी आर कंपेयरिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. तो हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं
फर्स्ट मेथड जो है दैट इज द प्रेजेंट वर्थ मेथड, विच वन वी हैव डिस्कस्ड आल्सो इन द प्रीवियस क्लास। आज जो है हम ये बाकी तीन मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर एक प्रोजेक्ट है या डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो उसकी कंपेयरिंग आप किस तरह करेंगे, दैट आइदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, और which project is best suitable among the different alternatives. ओके, सो जो प्रेजेंट वर्थ मेथड था उसको हमने डिस्कस किया था। उसका बेसिक स्टेटमेंट क्या था कि ऑल कास्ट जो है, ठीक है, ऑल कास्ट और ऑल बेनिफिट्स, ओके, मीन ऑल एक्सपेंसेस एंड जो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, और एक जो रिवेन्यू होते हैं, ठीक है, और फ्यूचर अमाउंट, ये सबको आप कन्वर्ट कर ले किस में, प्रेजेंट अमाउंट में। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियसली ये 6 इक्वेशन डिस्कस की ना, कि फ्यूचर अमाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट में, ये जो एनवीटी होती है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट में। तो अगर एनवीटी है, आइदर इफ इट इज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट वर्थ, इन द फ्यूचर अमाउंट आल्सो उसको कन्वर्ट कर ले प्रेजेंट वर्थ में। ठीक है, तो अगर एक प्रोजेक्ट है और उसका प्रेजेंट वर्थ जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल। और अगर दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो जिस प्रोजेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर था ये? ठीक, रिस्पांस कोई करना यार, वो प्रीवियस लेक्चर वो अभी तक हमने जो रिवाइज की उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन सर, क्लियर। अच्छा, और जिसने प्रीवियस लेक्चर मिस किया हुआ है उसको इस लेक्चर में मसला होगा, उसको समझ नहीं आएगा। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर मिस किया हुआ है तो काइंडली पहले उस लेक्चर को देख के, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है, तो फिर इस लेक्चर को आप देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नाउ सेकंड मेथड जो है फॉर कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव, दैट इज द एनुअल वर्थ मेथड। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि ये चार मेथड हम क्यों यूज करते हैं। अगेन सपोज अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, या आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सो आपने एट द स्टार्ट आपने ये एनालिसिस करना होगा कि आया ये बिजनेस, ये कंपनी या ये प्रोजेक्ट जो है ये इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप उसकी जो सारे कास्ट है उसको कन्वर्ट कर ले एनवीटी में। अगर प्रेजेंट अमाउंट है, मीन जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना तो इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट कर लें, एनवीटी में। ठीक है, अब एनुअल बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस भी होंगे और एनुअल बेसिस पे आपके अर्निंग्स भी होंगे, रेवेन्यू भी होगा, वो तो ऑलरेडी एनवीटी होगा। समझ आ रहा है? और एट द ईल्ड, अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए, तो आपको सपोज फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा तो उसको भी एनवीटी में कन्वर्ट कर लें। तो जो एक्सपेंसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो निगेटिव होंगे, और जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, जो रिवेन्यू है, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी प्रोजेक्ट की इन्विटी जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ जाए, सो इट मीन दैट द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो उसमें जिस प्रोजेक्ट की इन्विटी ज्यादा हो वो इकोनॉमिकल होगा, ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह प्रेजेंट वर्थ मेथड का है। लेकिन प्रेजेंट वर्थ मेथड में हम क्या करते थे कि सारी कास्ट को हम प्रेजेंट अमाउंट में कन्वर्ट करते कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और इसमें जो सारे कास्ट हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कास्ट हैं, एनुअल बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर कास्ट हैं, या सल्वेज वैल्यूज है, उन सारी वैल्यूज को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एनवीटी में। और फिर आप कंपेयर कर ले कि अगर एनवीटी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, अगर निगेटिव है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में होगा। फिर
ठीक है, तो सी एनुअल वर्थ इज रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्थ एंड फ्यूचर वर्थ। सी हमने डिस्कस किया हुआ है ना कि अगर प्रेजेंटली आप इन्वेस्टमेंट कर लें प्रेजेंटली, तो उसकी एनवीटी क्या होगी। सी एनवीटी गिवन प्रेजेंट एट इंटरेस्ट रेट आई फॉर इन पीरियड। सो प्रेजेंटली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो उसको एनवीटी में कन्वर्ट कर लें, और रिमेंबर ये निगेटिव होगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट है ना, आउटफ्लो है, कास्ट है, एक्सपेंस है, ये निगेटिव होगा। सिमिलरली एट द एंड ऑफ बिजनेस आफ्टर एन ईयर, आपको जो फ्यूचर में वैल्यू मिल रहा है, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो अर्निंग मिल रहे हैं, उसको भी एनवीटी में कन्वर्ट कर ले, convert it into NVT if it is salvage value, or if it is the earning at the end of the project, और ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, प्रेजेंट को एनवीटी में कन्वर्ट कर लें और फ्यूचर को एनवीटी में कन्वर्ट कर लें। इन आल्सो अगर बीच में एनुअल बेसिस पे कोई अर्निंग आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव होंगे, और अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो निगेटिव होंगे। तो ये चार वैल्यूज हैं, उनको आप प्लस माइनस कर लें। अगर एक प्रोजेक्ट की ये पॉजिटिव आ जाए तो दैट विल बी ओके। ठीक है, एनुअल वर्थ इज द इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म एनुअल वर्थ ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड डिस्बर्समेंट। ठीक है, जो जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है, उनको क्या कर लें, उनको एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सो annual worth is greater than or equal to zero, then the project will be economically attractive। ये उसका कंक्लूजन है। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनवीटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, सो देन इट विल बी इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव। एनवीटी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने दो कंपैरिजन डिस्कस की थी ना, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट्स मीन गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट नहीं करते, तो उनका एनवीटी जीरो जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर एनवीटी नेगेटिव हो तो फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं उसके ऊपर, अगर आप लोग उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी देते हैं ना, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट जब एक प्रोजेक्ट करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि उसकी या जो एनुअल वर्थ है या उसकी जो प्रेजेंट वर्थ है, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो तो वो फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को उससे फायदा होगा, गवर्नमेंट उससे अर्निंग करेगी। फिर अगर एनवीटी जो है किसी प्रोजेक्ट की सपोज वो जीरो हो, या एनुअल वर्थ या प्रेजेंट वर्थ उसकी जीरो हो, तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा, वो उसको क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस होता है ना, उसको उस तरह हम कहते हैं कि उसमें लॉस भी नहीं होगा और उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। और किसी प्रोजेक्ट की अगर एनवीटी जो है वो लेस देन जीरो है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। ये सुना है कभी आप लोगों ने? जी, कोई एग्जांपल बता सकता है? जी, कोई एग्जांपल है ये तीनों का आपके माइंड में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, कि किस तरह प्रोजेक्ट आपके माइंड में अगर है कि उसकी एनवीटी ग्रेटर देन जीरो, जिससे गवर्नमेंट अर्निंग करती है? जी, भाई कन्हैया। जी, एनीवन? सर अभी जो ये बीआरटी बन रही है इसमें एनवीटी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि गवर्नमेंट से अर्न कर रही है, और ये जो यहाँ पर एक चिड़ियाघर बनी है इससे भी वो अर्न कर रही है क्योंकि ठीक ये है, नॉन सब्सिडाइज है। गुड। और अगर एनवीटी इक्वल टू जीरो हो, जिस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर आप जो है एग्जांपल्स वो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसी ये एनवीटी या प्रेजेंट वर्थ या उसकी फ्यूचर वर्थ, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो वो अर्निंग प्रोजेक्ट्स होंगे। और प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए मस्ट एनवीटी मस्ट बी जीरो, बिकॉज प्राइवेट तो फिर आप बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करेंगे ना। अच्छा, नाउ सी यू हैव टू कन्वर्ट all the present amount into NVT।
तो अगर प्रेजेंटली आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर लें और लाइफ टाइम जो है इन्वेस्टमेंट का या प्रोजेक्ट का वो इन ईयर्स है और अर्निंग रेट आई है, तो द प्रेजेंट अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनवीटी, और ये इक्वेशन है। या डायरेक्टली आप टेबल से भी ले सकते हैं कि पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। सो अंडर द कॉलम ऑफ एनवीटी गिवन पी, इस कॉलम से आप वो फैक्टर लेके प्रेजेंट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, so you will get the NVT। and similarly फ्यूचर अमाउंट को NVT में कन्वर्ट कर लें फॉर इन पीरियड इफ अर्निंग रेट इज आई, तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप टेबल से भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट अमाउंट में क्या था, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, so you will have to purchase the building or land, or you have to purchase the equipments। ठीक है, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। एंड फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द मशीनरी, उसकी जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए तो आपको उससे जो अमाउंट मिलेगा दैट इज द सल्वेज वैल्यू, ये फ्यूचर अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, फ्यूचर में आपको मिलेगा। और एक एनुअल अमाउंट है ना, कैश फ्लोज है, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग कास्ट है, सपोज एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट जो है ये निगेटिव एनुअल अमाउंट होगा, और आपको जो अर्निंग और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव एनुअल अमाउंट होगा। ठीक है, तो उसको आपने जस्ट प्लस माइनस करना है। सी an asset has first cost of $20,000, annual operating cost is 8,000, and salvage value is 5,000 after 3 years. Now you have to calculate the annual worth of this project। ठीक है, at interest rate of 10%। तो सी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये निगेटिव होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 20% है, इसको आपने एनवीटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो सी आइदर यू कैन यूज दिस इक्वेशन इन, इसमें गिवन है 3 इयर्स है, आई जो है वो 10% है, प्रेजेंट अमाउंट जो है वो 20,000 है, तो जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन यू कैन गेट द एनवीटी। ठीक है, आर अब देखिए ना, ये टेबल से भी ले सकते हैं, 10% इंटरेस्ट टेबल से, एन जो है वो 3 होगा, और फ्रॉम द कॉलम एनवीटी गिवन पी वो उससे फैक्टर लेके 20,000 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, माइनस 8,000, ये देखें ना, ये ऑलरेडी जो है एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट है, मीन ये हर साल ये आएगा, तो दैट इज द एनुअल अमाउंट। सो ये, और ये ऑपरेटिंग कास्ट है, आउटफ्लो है, एक्सपेंसेस है, तो ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको 5,000 मिलेगा ना, तो ये फ्यूचर अमाउंट है। सी इस फ्यूचर को आप एनवीटी में कन्वर्ट कर लें। सी एनवीटी गिवन इफ एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% और पीरियड जो है वो 3 है, तो आइदर इस इक्वेशन को आप यूज कर लें, फ्यूचर अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट रेट और एन गिवन है, तो उसको एनवीटी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो सी ये प्लस होगा बिकॉज ये इनफ्लो है, ये जो है ये फ्यूचर में सल्वेज वैल्यू है, मीन आपको मिलेगा ना, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रोजेक्ट की जो एनुअल वर्थ है इट इज -14,532। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये एनुअल वर्थ ये माइनस क्यों है सर? मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट जो है इससे अर्निंग नहीं होगा ना, ये लास्ट में जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये इस तरह प्रोजेक्ट कि ये लास्ट में जाए ना। सपोज अगर इस तरह कंसिडर कर ले, अगर आपके पास गाड़ी है, पर्सनल प्राइवेट गाड़ी है, पर्सनल प्राइवेट गाड़ी है, 3 साल की भी आपने खरीदी हुई है, और 3 साल बाद आपने फिर उसको सेल करना होगा, तो अगर गाड़ी आप अपने लिए रख रहे हैं ना, तो आप उसकी एनुअल खर्चा तो बर्दाश्त करेंगे ना, तो एनुअली उसकी इतना खर्चा आएगा, इसको आप इस माइंड में कंसिडर करें, आप बिजनेस माइंड में कंसिडर ना करें इसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक और टर्म हम यूज करते हैं कैपिटल रिकवरी। अगर आप
एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इनिशियली आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर लें, तो इस अमाउंट को सपोज अगर आपने 20 ईयर्स में रिकवर करना है, ठीक है, इतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दी ना, और आप कह रहे हैं कि सपोज 20 साल में, या सॉरी 20 तो बहुत ज्यादा है, सपोज अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल में मैं अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लूं, तो हर साल आपने कितना अर्निंग करना होगा, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिकवरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस पे आपने सपोज $10,000 इन्वेस्ट कर दी, अब आप कह रहे हैं कि हर साल मैं कितना अर्निंग करूं कि ये अमाउंट जो है ये 5 साल में रिकवर हो जाए। तो 5 साल में आपका जो 5 साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा ना, मीन आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आप रिकवर कर लेंगे, और उसके बाद आपको जो अर्निंग मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द कैपिटल रिकवरी। फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, ओके, एंड व्हेन it will be recovered. Okay, that is the equivalent annual amount that an asset or process or system or business must earn each year to just recover the first cost of the project. इसको फिर कैपिटल रिकवरी कहते हैं। ठीक है, so again that is the present amount which you have invested plus the salvage value which will be coming after the project. तो हर साल फिर आपने इतना करना होगा। सी जो प्रीवियस एग्जांपल है ना, उसमें 20,000 जो है दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और 5,000 जो उसकी सल्वेज वैल्यू है। तो 3 साल में मीन अगर इतना जो है दैट विल बी द कैपिटल रिकवरी। ठीक है, मीन आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, 3 साल बाद वो खत्म हो जाएगी। या इस तरह भी आप कर सकते हैं ना, अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट की है, उसकी लाइफ टाइम कितनी है। ठीक है, तो अगेन हर साल में आपने कितना अमाउंट जो है वो सेव करना होगा, वो बचत रखना होगा साइड पे, कि आपका इनिशियल कॉस्ट जो है वो खत्म हो जाए, आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाए। तो ये जो एनुअल आप रख रहे हैं इसको कैपिटल रिकवरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, as we have discussed that suppose if you have a single project, then if the annual work is greater than or equal to 0, then the project will be economically justified. And if you have 2 or more alternatives, then select the one having highest या largest annual work. ठीक है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, सी एक एग्जांपल है कि a company is considering 2 machines, मशीन एक X मशीन है, एक Y है। ठीक है, कंपनी सपोज 2 मशीन खरीद रहे हैं या एक मशीन खरीद रहे हैं, उसके 2 क्वालिटी है, 2 ब्रांडेड है। तो X मशीन जो है उसका फर्स्ट कॉस्ट $30,000 है, उसकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट $18,000 है, और एट द एंड मीन आफ्टर 4 ईयर इट्स सल्वेज वैल्यू विल बी 7,000। दूसरा मशीन जो है उसका इनिशियल कॉस्ट 50,000 है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 16,000 है, सल्वेज वैल्यू उसकी 9,000 है, और लाइफ टाइम उसका 6 ईयर है। नाउ व्हिच वन विल बी सिलेक्टेड? अब देखिए ना, फर्स्ट मशीन जो है उसका कॉस्ट 30,000 है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, सल्वेज वैल्यू उसकी कम है, लाइफ टाइम उसकी कम है। दूसरा प्रोजेक्ट है उसका इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, सल्वेज वैल्यू ज्यादा है, लाइफ टाइम भी ज्यादा है। तो अब इकोनॉमिकली आपने कंपेयर करना होगा दैट व्हिच वन मशीन विल बी सेलेक्टेड। If the interest rate or earning rate of the investment is 20%, मतलब ये है कि अगर आप इन मशीन्स को ना खरीदे ना और ये अमाउंट आप इन्वेस्ट कर ले किसी सेफ बिजनेस में, तो आपको वहां से इतना अर्निंग मिल सकता है। तो इसलिए ये 20% आपने अकाउंट करना होगा। तो जो एक्स मशीन है
सी उसकी प्रेजेंट अमाउंट जो है उसको एनुअल में कन्वर्ट कर लें। अगेन वी हैव द इक्वेशन ना कि प्रेजेंट को आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे एनवीटी में, और वो निगेटिव में होगा बिकॉज दैट इज इन्वेस्टमेंट। 18,000 तो एनुअल चार्जेस हैं, वो तो सॉलिड फॉर्म में यही अमाउंट होगा और नेगेटिव होगा। एंड एट द एंड आफ्टर 4 ईयर आपको 7,000 उससे सल्वेज मिलेगा। सो अगेन ये फ्यूचर को आपने कन्वर्ट करना है एनवीटी में, उसकी वो इक्वेशन भी गिवन है और टेबल से भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका एनुअल वर्थ क्या होगा 26,412। जो दूसरा है अगेन उसकी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को एनवीटी में कन्वर्ट कर लें, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका ये है और फ्यूचर सल्वेज वैल्यू आफ्टर 6 ईयर उसकी 9,000 है। So again you will get this much is the annual worth for the Y machine. So now see which one will be selected. Obviously X1 because उसकी annual worth जो है वो ज्यादा है, ठीक है, माइनस है ना तो ये ज्यादा है। Is it clear? समझ आ रहा है इसकी? जी सर। अच्छा, ये कन्वर्जन तो कर सकते हैं ना, प्रेजेंट से एनवीटी और फ्यूचर से एनवीटी फार्मूलाज भी हैं और टेबल से डायरेक्टली फैक्टर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। अब जी जस्ट सर, गूगल easy पे है। सर्च कर ले इंटरेस्ट रेट टेबल्स तो आपको सारे टेबल जो है वो आ जाएंगे। सर सिंपली सर जो मतलब जो अमाउंट हम खर्च करते हैं सर इसको नेगेटिव मिले, जो जो हमें मतलब मिलता है उससे उसको जी पॉजिटिव मिले। जी, अगर एक प्रोजेक्ट है वो अर्निंग प्रोजेक्ट है तो जिस प्रोजेक्ट की अर्निंग रेट ज़्यादा हो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर दो प्रोजेक्ट है सपोज वो उसके एक्सपेंसेस, जिस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है, वो जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इन दोनों में इस प्रोजेक्ट की एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, सपोज अगर देखें एक प्रोजेक्ट है, सपोज अगर दो प्रोजेक्ट्स है, एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, उसका सल्वेज वैल्यू होगा, सपोज उसकी लाइफ टाइम 10 ईयर्स है। दूसरा प्रोजेक्ट है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है, सल्वेज वैल्यू ये है, लेकिन उसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट है, ठीक है, उसका एन जो है वो क्या है इनफाइनाइट है। तो फिर उसकी जो एनवीटी आप फाइंड करेंगे ना, then the NVT will be directly equal to the present amount multiplied by the interest rate. If a project या alternative have infinite life, ये याद रखें। सी अगेन दो अल्टरनेटिव है, एक सी एक डी। सी की फर्स्ट कास्ट क्या है 50,000, AUC एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट 20,000, सल्वेज वैल्यू 5,000, लाइफ ईयर 5। दूसरा प्रोजेक्ट है उसका फर्स्ट कास्ट $250,000 है, एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट उसकी 9,000 है, सल्वेज वैल्यू 75,000 है, लेकिन वो जो है वो आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन इतना भी लाइफ टाइम, लेकिन वो इस तरह की ज्यादा टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप कंपेयर कर लें, ठीक है। तो सी फर्स्ट जो अल्टरनेटिव है ना, सी अल्टरनेटिव, उसकी प्रेजेंट अमाउंट को कन्वर्ट कर लें एनवीटी में, बिकॉज उसका लाइफ टाइम 5 ईयर्स है, ये उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फ्यूचर में सल्वेज वैल्यू ये होगा, तो एनुअल वर्थ दैट इज 32,371। जो दूसरा है उसका प्रेजेंट कितना है P मल्टीप्लाइड बाई आई जस्ट, ठीक है, 250,000 मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट प्लस इसका क्या है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। और ये सल्वेज वैल्यू तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, इसका इन गिवन नहीं है, तो क्या आएगा 34,000 आएगा एनुअल वर्थ। अगेन नाउ दिस वन विल बी सिलेक्टेड बिकॉज इस प्रोजेक्ट की जो एनुअल कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो मेड इन जापान है और दूसरा प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना है, तो जाहिर बात है इसके कास्ट ज़्यादा होते हैं, ऑपरेटिंग कास्ट उसका कम होता है, लाइफ टाइम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो चाइना प्रोडक्ट है
उसका फर्स्ट कास्ट कम होता है, ऑपरेटिंग कास्ट ज़्यादा होता है, लाइफ टाइम उसकी कम होती है, तो आपने कंपेयर करना होगा अगेन। समझ आ रहा है? सी एक और एग्जांपल है, सपोज इनिशियल पेमेंट इज 15,000, रिकरिंग एनुअल पेमेंट मीन हर साल 3500 जो है ये आपने उसकी ऑपरेटिंग कास्ट होगा। रिफंड एट द एंड, आखिर में $1000 मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% है। तो उसका एनुअल वर्थ क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? तो उसी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर लें एनवीटी में, फ्यूचर में जो 1000 मिलेगा उसको कन्वर्ट कर लें एनवीटी में, और माइनस 3500 जो है ये तो एनुअल चार्जेस है, एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट है, तो इसका एनुअल वर्थ जो है दैट विल बी 7349। ठीक है, इसको टेबल से इस तरह लेते हैं। अगेन ये एग्जांपल अगर आप समझे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, मीन ये प्रेजेंट है ना, इसको आप कन्वर्ट कर ले एनवीटी में, तो द अर्निंग रेट या द इंटरेस्ट रेट इज 15% और लाइफ क्या है 6 ईयर है, सो 15% इंटरेस्ट टेबल पे आपने जाना होगा और हमें क्या करना है प्रेजेंट अमाउंट को एनवीटी में कन्वर्ट करना है ना। तो इस तरह होता है, टू फाइंड एनवीटी गिवन पी, सो एनवीटी गिवन पी, ठीक है, लाइफ कितना है 6, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा 0.2642। तो इस फैक्टर को प्रेजेंट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये उसका एनवीटी आ जाएगा। सिमिलरली फ्यूचर में आपको 1000 मिल रहा है, तो इसकी एनवीटी के लिए फैक्टर क्या होगा? सी एनवीटी गिवन फ्यूचर, और एन क्या है 6 ईयर है, तो 0.1142, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1000 का एनवीटी क्या आ जाएगा 114, और ये 3500 तो ऑलरेडी एनुअल चार्जेस है, तो यू विल गेट 7349 द एनुअल वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, most important. Two alternative planes are considered for a section of an aqueduct. Okay, suppose अगर इस तरह एक्विडक्ट डिजाइन करना है ना, एक्विडक्ट क्या होता है कि सपोज अगर आप एक इरिगेशन चैनल डिजाइन कर रहे हैं और बीच में कोई रोड आ जाए, कोई रास्ता आ जाए, तो कैनाल को आपने उसकी ऊपर से पास करना होगा या उसके नीचे से पास करना होगा। ठीक है, सपोज अगर ये रोड है ना, इस तरह रोड है और यहां से आप कैनाल डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये कैनाल है, तो बीच में ये कैनाल को रोड के ऊपर से पास करना होगा या रोड के नीचे से पास करना होगा, उसको एक्विडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास दो प्लेन है। प्लेन ए क्या है, सपोज आप एक टनल कंस्ट्रक्ट कर लें, टनल, ठीक है, बिलो दी रोड, ठीक है, और प्लेन बी क्या है कि सपोज आप उसकी ऊपर जो है इस तरह की शेप का एक फ्लूम डिजाइन कर लें, रोड की ऊपर एक फ्लूम डिजाइन कर लें, ठीक है, या उसके नीचे एक टनल डिजाइन कर लें, तो दो प्लेन हो गए ना। अब आपने उसकी इकोनॉमिकल एनालिसिस करना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकली इफिशिएंट है। ठीक है, अब देखें प्लेन ए क्या है, द एस्टिमेटेड फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द टनल इज $450,000। एनुअल मेंटेनेंस अगर आपने करना है तो 4000 उसका मेंटेनेंस खर्चा होगा, और उसका लाइफ टाइम कितना होगा 100 ईयर होगा। ठीक है,
प्लेन बी जो है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $120,000 होगा, 100 ईयर उसका लाइफ टाइम होगा। ठीक है, मीन अगर उसकी लाइनिंग आप ना करें ना, अनलाइनिंग केनाल आप डिजाइन कर लें तो $120,000 उसका कॉस्ट होगा, लाइफ टाइम 1000 ईयर होगा। और अगर आप लाइन केनाल डिजाइन कर लें तो 50,000 उसका इनिशियल कॉस्ट होगा, 20 ईयर उसका लाइफ टाइम होगा। उसके साथ आप फ्लूम डिजाइन कर ले तो उसका 90,000 कॉस्ट होगा, 50 ईयर उसका लाइफ टाइम होगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी $10,500 होगी। ठीक है, नाउ जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस पे 6% इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर लें। ठीक है, उसकी और सर्वे वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल होगी। जब इस तरह के प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो उसकी तो कुछ वैल्यू नहीं होती ना। तो अब आपने कंपेयर करना है कि हम टनल डिजाइन कर लें या एक ओपन चैनल फ्लूम टाइप डिजाइन कर लें। ठीक है, तो अब देखें प्लेन ए, उसकी जो एनुअल कॉस्ट है या उसकी जो कैपिटल रिकवरी है दैट इज इन, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना $450,000, उसको कन्वर्ट कर लें एनवीटी में। समझ आ रहा है? तो इस तरह होगा ना कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंट सी हमने एनवीटी फाइंड करना है, प्रेजेंट अमाउंट का, इंटरेस्ट रेट इज 6% और लाइफ टाइम 100 ईयर है। तो 6% इंटरेस्ट टेबल से 100 ईयर के आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, so that will be the NVT of the initial investment. Similarly 4,000 जो है उसका एनुअल मेंटेनेंस खर्चा है। तो हर साल टनल की जो कास्ट होगी एनवीटी होगी दैट इज 31,081। सिमिलरली प्लेन बी जो है इनिशियल जो उसकी कास्ट है ना वो $120,000 है। अगेन उसके लिए अगर आप फैक्टर फाइंड कर लें, it's 6% interest rate and for 100 year, तो ये फैक्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो that will be the initial cost। ठीक है, सिमिलरली जो कैनाल का जो लाइनिंग पोर्शन है उसका इनिशियल कॉस्ट ये है, वो फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। और जो फ्लूम है उसका इनिशियल कॉस्ट ये है, उसका फैक्टर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और एनुअल मेंटेनेंस ये है। तो ये सारे जब आप प्लस करेंगे तो प्लेन बी का एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है 27,791। ठीक है, so now you can see that the annual cost of plane A is greater than the annual cost of plane B, so plane B will be economically selected। समझ आ गई कि नहीं है? ठीक है, just you have to Yes, sir, convert हाँ। the present investment and annual maintenance cost into NVT for both the project, and then you have to compare कि एक प्रोजेक्ट का एनुअल कॉस्ट कितना है और दूसरे प्रोजेक्ट का एनुअल कॉस्ट कितना है। तो जिस प्रोजेक्ट की एनुअल कॉस्ट कम होगी then you have to go for that। ठीक है, so that was the annual worth method। अच्छा, एक लास्ट मेथड जो है दैट इज द बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, सपोज if you have different project and for example you have to compare it, या अगर एक प्रोजेक्ट है तो आपने उसकी बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस करना होगा। ठीक है, ये थर्ड मेथड है ना, जिस तरह हमने डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड क्या था, यू हैव टू कन्वर्ट द ऑल कॉस्ट इनटू प्रेजेंट वर्थ। सेकंड मेथड जो है यू हैव टू कन्वर्ट ऑल कॉस्ट इनटू एनुअल वर्थ। नाउ यू हैव टू डू द बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, that is also called as cost benefit analysis or benefit cost analysis। that is a method of comparison in which the consequences of an investment are evaluated in terms of money। okay, so again we have two different categories, एक आपके expenses है और एक revenue है, इन एक benefits है और एक cost है। तो सारे benefits को और कास्ट को अगेन आप प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लें
या एनुअल वर्थ में कन्वर्ट कर ले और उनका रेशो ले ले, तो जिस प्रोजेक्ट का बेनिफिट कास्ट रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, देन दैट प्रोजेक्ट विल बी इकोनॉमिकली एक्सेप्टेड। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट जो है ना उसका बेनिफिट प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लें और उसका कास्ट प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लें, एंड देन टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। ठीक है, so in the most basic scenes, if the value of benefit is greater than the value of cost, the project is worthwhile. Yeah, if the benefit cost ratio is greater than or equal to 1, sorry, तो previous slide में मैंने बता दिया greater than equal to 0, ये 0 नहीं है, 1. Benefit cost ratio is greater than 1, then the project is economically acceptable. अगर 1 से कम हो, सपोज अगर 0.8 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, एंड इफ दैट रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन द प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, एंड इफ द benefit cost ratio value is exactly or very near to 1, that is non-economic factor and will help make the decision for the best alternative. नहीं फिर आप डिसीजन कर सकते हैं, अगर बेनिफिट कास्ट रेशियो एग्जैक्टली 1 की नियर आ जाए तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा ना, देन यू कैन टेक द डिसीजंस टू कंसीडर अनदर अल्टरनेटिव फॉर मोर बेनिफिट्स। ठीक है, सो जस्ट कीप इन माइंड दिस वैल्यू। So benefits, that is the advantages, and disbenefit, that is the disadvantages, या that is the expenditures. Okay, तो जो benefits हैं या जो costs हैं उनको आप present worth में या annual worth में या future worth में convert कर लें और फिर उसका ratio ले लो, just simple. ठीक है, तो again if BC is greater than or equal to 1, economically justified, if less than 1, नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर है तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, उसकी मेजरमेंट्स कर लें कि एनुअली या प्रेजेंटली या फ्यूचर में कितना कॉस्ट होगा, उसकी कितनी अर्निंग होगी या एक्सपेंसेस कितनी होगी, उसको जस्ट आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसकी कंपैरिजन कर लें। ठीक है, बस suppose if you are going to execute a flood control project, so suppose the initial investment is 1.4 million. ठीक है, suppose अगर flood control project आप कर दें ना, तो suppose अगर first का जो है 1.4 million है और annual maintenance उसका 40,000 होगा, इन 10 ईयर जो है उसका लाइफ टाइम है। तो जब आप फ्लड कंट्रोल करेंगे ना तो डैमेजेस रिड्यूस्ड हो जाएंगे। स्टेटमेंट को समझे, सपोज अगर आप फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस एरिया पे फ्लड आएगा। अच्छा, अगर फ्लड आ रहे हैं तो उससे डैमेजेस काज्ड होंगे। तो अगर आप फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट कर लेना तो डैमेजेस जो हैं वो जो एक्सपेक्टेड डैमेज है वो आपका एज अ बेनिफिट हो जाएगा ना। सो सी इफ यू हैव डन द फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट, उसका जो फर्स्ट कॉस्ट है 1.4 मिलियन डॉलर है, एनुअली 40,000 उस पर खर्चा आएगा, 10 ईयर उसका लाइफ टाइम होगा और 175,000 पर ईयर जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाएगा। Lost income to farmer is estimated to be 25,000 per year at an interest rate of 6%. ठीक है, अब आपने कंपेयर करना है कि आया आप फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट कर ले कि ना करे। तो बेनिफिट्स कितना मिलेगा पर ईयर, 175,000। ठीक है, और 25,000 जो है अगेन ये फार्मर्स के लॉसेस होंगे, ये तो ये डिसबर्समेंट है, ये अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। और इनिशियल कॉस्ट जो है वो 1.4 मिलियन है ना,
तो इसको आप एनवीटी में कन्वर्ट कर लें। 40,000 एनुअल कास्ट है, इसका मतलब ये कि पर ईयर जो कास्ट है वो $218 होंगे। नाउ आप इसका रेशो ले लें, समझ आ रहे ना। 175,000 ये एनुअल बेनिफिट होगा, 25,000 जो है अगेन ये एनुअल लॉस होगा फार्मर का। तो आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो फेवर बेनिफिट्स कितना होगा 150,000 और एनुअल कास्ट कितना आ रहा है 230 218। तो इसका बेनिफिट कास्ट रेशो जो है 0.65 आ रहा है ना। सो डू नॉट बेट दिस प्रोजेक्ट, मीन वैसे आप खर्चा करेंगे उल्टा उसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और है, इसको आप देखें, एग्जांपल है The average annual damage from flood in a river is estimated to $400,000। इन एक फ्लड आ रहा है ना किसी एरिया पे, तो उसकी जो एनुअल डैमेज है ये एनवीटी है ना, हर साल $400,000 उससे डैमेज हो रहा है। Now estimates are made for several alternative projects। ठीक है, अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्ट कर लें, एक ए और मीन दो अल्टरनेटिव उन्होंने कंसिडर कर दी ना कि फ्लड जो है ये रिड्यूस्ड हो जाए। एक अल्टरनेटिव क्या है, चैनल इंप्रूवमेंट। अगर चैनल आप प्रॉपरली इंप्रूव कर लेना तो क्या होगा, उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो फ्लड जो है वो ज्यादा नहीं होगा, फिर वो ज्यादा डैमेज नहीं होगा उससे, ठीक है। सो दो अल्टरनेटिव है ए एंड बी। ए ये है कि सपोज आप डैम कंस्ट्रक्ट कर लें, because dam site A is located in the reservoir area for B, one or other of these sites may be used but not both। क्वेश्चन को दोबारा समझें। सी सपोज अगर एक एरिया है उसके ऊपर सपोज फ्लड आ रहा है, तो एनुअल डैमेज caused by the flood is $400,000, ठीक है। नाउ estimates are made for several alternative to control the damage of the flood। So channel improvement will increase the capacity of the stream to carry flood discharge। एक alternative ये है। One alternative is to increase the capacity of the channel। दूसरा alternative क्या है, to construct the dam and reservoir, ठीक है। A alternative है to construct the dam और बी अल्टरनेटिव है टू कंस्ट्रक्ट द स्टोरेज रिजर्वायर, ओके। बिकॉज अगर सपोज आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दैट इज इन द एरिया ऑफ बी। सी तीन अल्टरनेटिव्स हो गए, चैनल इंप्रूवमेंट, डैम कंस्ट्रक्शन, स्टोरेज रिजर्वायर, ओके। एंड द annual interest or earning rate that is 8%। Life of channel improvement will be 25 years and the life of dam and reservoir will be 100 years, ठीक है। ये that is n for channel, n is 25, for dam and reservoir n is 100 years। Now see, if you are doing nothing for flood control, if you are doing nothing, so investment क्या होगा, zero। Are you getting this point? Suppose if you are doing nothing for the flood control, so what will be the investment, $0। डैमेज कितना होगा, $400,000 डैमेज होगा, बिकॉज अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तो फ्लड से डैमेज तो होगा, एंड दैट इज $400,000। और उस पे इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगा, उसका ऑपरेशन भी जीरो होगा, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग। सो एनुअल डैमेज विल बी 400,000। Now suppose if you construct, if you improve the channel, so the initial investment on the channel is 300,000। तो अगर चैनल को आप इंप्रूव कर लें तो फ्लड से डैमेज जो है वो $250,000 हो जाएगा।
तो फायदा कितना होगा आप बताएं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना. सो द डैमेज इज $400,000 एंड सपोज इफ यू हैव इम्प्रूव्ड द चैनल then the damage will be reduced to 250,000 मीन 1,50,000 एनुअल बेनिफिट आएगा आपको, वो डैमेज जो है उतना रिड्यूस्ड हो जाएगा. एंड दिस मच इज द एनुअल इन्वेस्टमेंट चार्जेस मीन ये 300,000 तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इसको आप कन्वर्ट कर ले एनवीटी में. एंड 100,000 इज द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है. So see, if you improve the channel, then the damage will be reduced to $250,000 per year, but the annual investment $28,000 and 100,000 is the operating cost. So मतलब ये है कि फिर annually आपका total खर्चा कितना होगा, total cost कितना होगा 378. Okay. And suppose next alternative क्या है, for example if you develop जो डैम अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज दिस मच, इसको आप एनवीटी में कन्वर्ट कर लें ना. सो इफ यू कंस्ट्रक्ट द डैम देन द फ्लड डैमेज विल बी 190,000 एंड दिस इज द एनुअल एनवीटी ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. 60,000 उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा. तो इफ यू कंस्ट्रक्ट द डैम या इफ यू डेवलप द साइट ए, then the total expenses will be 346. Similarly, if you develop site B, so its initial cost is this one, then the damage will be reduced to this one. Initial investment को आप NVT में convert कर लें, and this much is its operation cost. So the total annual expenses will be this one. सिमिलरली अगर आप साइट ए डेवलप कर ले और उसके साथ चैनल इंप्रूवमेंट भी कर ले, तो टोटल इनिशियल कॉस्ट इतना आएगा, फ्लड डैमेज इतना हो जाएगा, फिर रिड्यूस्ड हो जाएगा ना. दो आपने दो काम कर दिए. इसका एनवीटी ये होगा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होगा. सो टोटल एक्सपेंसेस विल बी दिस वन. सिमिलरली इफ यू डेवलप साइट बी along with channel improvement, so total investment will be this one. Convert it into NVT, the flood damage will be reduced to this one, annual operation cost will be this one, so total expenses will be this one. Now you can see that from which project you are getting the less expenses. G. So I think 346,048. Okay, sorry 333. This one 333,064. So you have to develop the site B. Site B को develop कर लें. ठीक है. हाँ से देखें ना, इस प्रोजेक्ट से एनुअल बेनिफिट कितना आएगा, 1,50,000. इस प्रोजेक्ट से जी जी हसीब सर, ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई तो ये इसको हमने एनुअल वर्थ मेथड के जरिए इसको कन्वर्ट किया, ये वैल्यू तो गिवन नहीं है ना. हाँ, ये उसकी एनवीटी है ना, ये एनुअल एक्सपेंसेस है. ठीक है. यस सर. जी क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा वेट कर ले, एग्जांपल खत्म हो जाए फिर आप पूछ सकते हैं. सर जो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई है $300,000 जी, और ये उसके बाद जो 1.2 मिलियन, सर ये वैल्यू किस तरह से आ गई है. अच्छा सी, if you are doing nothing, again if you are doing nothing, तो annual damage $400,000 का होगा. so that is the $400,000 annual cost. and if you are improving the channel, तो improvement of channel पे 300,000 investment आएगा. उसकी एनवीटी ये होगी, इसकी वजह से डैमेज जो है वो 4 लाख से कम होके 250,000 हो जाएगा और एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट उसका 100,000 होगा. तो इन तीनों को अगर आप सम कर लें
तो इस प्रोजेक्ट की वजह से एनुअल कास्ट इतना हो जाएगा, ये दूसरे प्रोजेक्ट से इतना हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से इतना हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से ये होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से ये होगा। अगर आप सिर्फ चैनल इंप्रूवमेंट कर लें तो डैमेज कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 1,50,000 आपको फायदा होगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लें तो डैमेज कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 2,10,000। अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लें तो डैमेज क्या हो जाएगा, 125,000। कितना डिक्रीज होगा, 4 लाख है ना। अगर आप प्लेन बी डेवलप कर ले तो डैमेज क्या हो जाएगा, 125,000 मीन 275,000 आपको बेनिफिट आएगा। सिमिलरली अगर ये आप कर लेना तो डैमेज विल बी रिड्यूस टू 60,000। इट मींस दैट कि आपको कितना फायदा हो जाएगा, डैमेज कितना रिड्यूस हो जाएगा, 3,40,000। अब देखें ना, दीज आर द बेनिफिट्स। इफ यू डू द फर्स्ट प्रोजेक्ट तो इतना बेनिफिट हो जाएगा, डैमेज रिड्यूस्ड हो जाएगा ना। उसका कास्ट ये है एनुअल कास्ट, तो बेनिफिट कास्ट रेशो आप कर लें तो बेनिफिट कास्ट रेशो से क्या मैक्सिमम कौन सा है, 1.35। तो आप सेकंड अल्टरनेटिव पे जाएं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप चैनल इंप्रूवमेंट कर लें। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। ये भी एक प्रोजेक्ट है, आप लोग खुद फिर उसकी जस्ट देख ले कि फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, डैम ए कंस्ट्रक्ट कर ले, डैम बी कंस्ट्रक्ट कर ले, या लीविस कंस्ट्रक्ट कर ले, या अल्टरनेटिव ये है कि ए बी दोनों कर ले, या ए सी कर ले, या बी सी कर ले, या ए बी सी कर ले। इनिशियल कास्ट ये है, ऑपरेटिंग कास्ट ये है, डैमेजेस ये है इन मिलियंस। ठीक है, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कास्ट नहीं आएगा, लेकिन डैमेज 2 मिलियन का होगा। ठीक है, तो इसकी आप बेनिफिट एनालिसिस कर लें तो ये जो आ रहा है दैट इज दी टोटल एनुअल कास्ट जो है, लीस्ट कास्ट 2.2 मिलियन आता है ना, तो फिर ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो उसी ये जो 2 लेक्चर जो हमने डिस्कस की, प्रीवियस और ये लेक्चर, बेसिकली इसका मतलब क्या था कि सपोज अगर आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इफ यू हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, तो हाउ यू विल कंपेयर इट इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी आप उसको किस तरह कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है बेस्ट इकोनॉमिकली सुटेबल है।